Good evening, respected audience. This is Naushabe Khan, attorney at law, adjunct professor law. In our first episode and in the second segment of this topic, which relates to Zainab Alert, Response and Recovery Act 2020 and the implications of the same, we have discussed certain aspects and we reached to this point that in order to ensure the compliance of this law and in order to ensure the implementation of this law, the federal government has formed an agency with the name of Zainab Alert, Response, Recover Agency, and under that agency, which is commonly known as ZARA actually, this very agency will be run under the auspices of a director general. And if I read the relevant law, it provides that the following shall be powers and functions of ZARA that shall be performed under the administration of the director general, namely, and so these are the functions of ZARA: to activate Zainab alerts when there is a missing or abducted child, which shall include information on the physical characteristics of a missing or abducted child, as well as any other data that would help in the child's identification, so as to inform the public at large and all concerned agencies to whom these alerts shall be issued. तो बुनियादी तौर पे इस कानून के तहत जो एजेंसी फॉर्म की जाएगी, उसका पहला जो बुनियादी फंक्शन है वो ये है कि वो अलर्ट रेज करे टू डिसमिनेट दिस इंफॉर्मेशन अमंग द जनरल पब्लिक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अबडक्टेड और मिसिंग चाइल्ड। इसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। इसी सेक्शन के क्लॉज बी में ये कहा गया to coordinate with Pakistan Telecommunication Authority for the issuance of Zainab Alert SMS, MMS, and with Pakistan Electronic Media Regulatory Authority for broadcast tickers on television channels and announcement on radio stations and alerts on social media, as well as posting on relevant websites on or online print media or any other available medium to report abduction। तो क्लॉज बी के तहत बुनियादी तौर पे जितने पॉसिबल मैस कम्युनिकेशन के मीडियाज़ हैं, वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इस बात को इंश्योर करना है ज़ारा ने, द रेलिवेंट एजेंसी जो है, कि मिसिंग चाइल्ड जो है, अबडक्टेड चाइल्ड जो है, उसके बारे में अवेयरनेस जो है उसको डिसमिनेट किया जाए, ताकि उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म है वो इंश्योर हो सके। तो ये बुनियादी तौर पे एक बुनियादी जिम्मेदारी है एजेंसी की। आगे हम चलें तो जैसे पहले बताया गया कि फंक्शंस में टू प्रोवाइड nationwide telephonic toll-free hotline number 1099 or such other number where any person may report a missing or abducted child, and such number may be used for any member of the public who has any information relating to the missing or abducted child। तो बुनियादी तौर पे जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया कि बीइंग पेरेंट हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि गॉड फॉरबिड अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो, इफ़ द चाइल्ड इज़ मिसिंग, तो फोर्थ विद 1099 डायल कीजिए एंड डिसमिनेट दिस इंफॉर्मेशन सो दैट द रेलिवेंट एजेंसी विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। तो ये बुनियादी तौर पे रिक्वायर्ड है अंडर द रेलिवेंट लॉ। फर्दर क्लॉज ई को अगर हम डिस्कस करें तो ये एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन एन ऑनलाइन डेटाबेस both in ZARA and division concerned with every reported incident of a missing or abducted child, the actions taken, the current status of the case, and its final outcome. This database shall be monitored for accuracy and shall be kept updated at all times. The database shall cover all territories of Pakistan and shall be accessible
to public on the Zara website in English and Urdu. तो बुनियादी तौर पे इस अथॉरिटी की क्लॉज ई के तहत, इस एजेंसी की क्लॉज ई के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक डेटाबेस इंश्योर करे जिसमें जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो मिसिंग और अबडक्टेड चिल्ड्रन के बारे में, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो डिवीज़न लेवल पे भी इंश्योर किया जाए कि जो एजेंसी के डिविजनल ऑफिसेस हैं वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी अवेलेबल हो। मज़ीद क्लॉज एफ जो है इसी कानून की, वो जब डिस्कस करती है फंक्शंस ज़ारा एजेंसी के, तो उसमें टू डिफाइन प्रोसीजर्स फॉर हु, हाउ एंड व्हेन an incident of missing or abducted child shall be brought on to the Zara database. The National Commission on Rights of Child and division concerned shall also have the responsibility to maintain a database. So, बुनियादी तौर पे इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये डेटाबेस जो है ये कब पब्लिकली डिसेमिनेट होना है, और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये डेटाबेस जो है ये कौन डिसेमिनेट कर सकता है, कब डिसेमिनेट कर सकता है, इस बात को भी इंश्योर करना है रेलिवेंट ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने और ज़ारा ने, जो कि रेलिवेंट एजेंसी है। फर्दर ज़ारा एजेंसी के फंक्शंस में ये बात शामिल है टू मेंटेन प्रॉपर record of each case, coordinate any information on missing children with local law enforcement agencies, detect criminal patterns in a geographical area, issue monthly public reports on missing and abducted children on its website, introduce procedures and key performance indicators that will improve and measure the effectiveness of Zara. So, बुनियादी तौर पे ज़ारा की इफ़ेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए एक मैकेनिज़्म इंश्योर किया जाएगा जिसमें इस बात को गारंटी किया जाए कि ये जो डेटाबेस है इसमें इस बात को भी देखा जाए कि इस डेटाबेस में अगर कोई ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे हमने ज़ैनब के इंसिडेंट में देखा कि उस वक्त ये बात मीडिया में रिपोर्ट्स हुई कि कुछ एरियाज़ वनरेबल हैं जहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो रैम्पेंट हैं। तो जब ये डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा तो ये बात इंश्योर हो सकेगी कि वो एरियाज़ कौन से हैं जहाँ ज़्यादा वनरेबल हैं माइनर्स, और उसको कैसे कर्ब किया जा सकता है उस मैनस को, और उसको कैसे स्ट्रिक्टली डील किया जा सकता है। तो ये सारी हेल्प जो है वो डेटाबेस की बेसिस पे ही मुमकिन है, जिसके लिए ये इंश्योर करना है एजेंसी ने कि वो प्रॉपरली डेटाबेस को मेंटेन करे। जो फर्दर क्लॉजेज हैं जे, के और एम, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब जहाँ तक ताल्लुक़ है फंक्शंस का, तो टू इंश्योर दैट फुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग रिसीव्ड इन ज़ारा ऑफिस, to provide such administrative arrangements as may be necessary and appropriate to secure the safe return of any such child, to coordinate and cooperate with relevant foreign agencies and authorities in cases of missing or abducted children where the child has been wrongfully removed to or from Pakistan, and frame standard operating procedures for the same. तो बेसिकली इन क्लॉजेस के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एजेंसी की कि वो इंश्योर करे कि अगर रिमूवल है किसी माइनर की फ्रॉम द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान, तो वो कोऑर्डिनेट करे विद द फॉरेन एजेंसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर द रिकवरी ऑफ द मिसिंग चाइल्ड। तो ये बुनियादी तौर पे प्राइमरी फंक्शंस हैं एजेंसी के। और फर्दर to seek the cooperation of all federal and provincial law enforcement agencies and any other federal or provincial agencies, authorities or departments in cases of missing or abducted children. तो इस क्लॉज के तहत बुनियादी तौर पे if within Pakistan कोई abducted या missing child है, तो एजेंसी के पास जो फेडरल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है
उसके पास उसके फंक्शंस में उसका ये मैंडेट है कि वो इंश्योर करे कि एट प्रोविंशियल, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करे, उनको इंस्ट्रक्ट करे टू इंश्योर टू रेज द अलार्म, to respond to the situation, and finally to ensure the recovery of missing or abducted child. Further हम डिस्कस करें इसी कॉन्टेक्स्ट में तो एजेंसी के साथ साथ यानी ज़ारा जो एजेंसी है उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन एडवाइजरी बोर्ड है उसको भी पावर्स और फंक्शंस असाइन किए गए हैं इसी कानून के तहत। उसकी कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस मैं आपसे शेयर करूंगा। विदाउट प्रेजुडिस टू द बिजनेस एलोकेटेड टू द डिवीजन कंसर्न्ड, द फॉलोइंग शैल बी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ICT Child Protection Advisory Board for the purposes of this Act, namely to analyze the performance of ZARA, to evaluate the effectiveness of ZARA functions, and to take actions to continually improve the performance of ZARA. So, as a matter of fact, ICT Child Protection Advisory Board का मैंडेट है कि वो एजेंसी जो ज़ारा की है इंश्योर करे कि ज़ारा के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रहे हैं और जो कानून ने ज़ारा एजेंसी को मैंडेट दिया है उसकी फुलफिलमेंट में कोई लूप होल्स तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी या शॉर्टकमिंग तो नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे पावर्स हैं ICT चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी की कि वो ज़ारा की फंक्शनिंग को मॉनिटर करे और एक अम्ब्रेला बॉडी का किरदार अदा करे। मज़ीद अगर हम डिस्कस करें ICT चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से to provide governance and oversight in order to ensure that all actions relating to ZARA that are initiated from registration of FIR to safe recovery of a child and referral for rehabilitation of the recovered child are performed effectively. So बुनियादी तौर पे ICT चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि ज़ारा एजेंसी जो है उसके ज़िम्मे जो बुनियादी फंक्शंस हैं, सबसे पहले अलर्ट, आफ्टरवर्ड्स रिस्पॉन्स एंड आफ्टर द रिकवरी टू इंश्योर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द रिकवर्ड चाइल्ड, ये सारा जो मैकेनिज़्म है इसको इंश्योर किया जाए कि ज़ारा एजेंसी जो है वो उसे प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रही है। मज़ीद इसी डिस्कशन में जहाँ तक हमने पहले डिस्कस किया कि ज़ारा जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकती है एट डिफरेंट लेवल्स विद द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नेंस, उसी कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 7 प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन ज़ारा एंड लोकल पुलिस स्टेशंस। The police station where a case of missing or abducted child is reported shall immediately and not later than 2 hours after the complaint is lodged through any available means of communication, call, fax, electronic email or ZARA mobile application, inform the ZARA of the missing child incident and keep providing latest status of the case and all available details on daily basis. सेक्शन 7 में जो कीवर्ड्स हैं नॉट लेटर देन 2 hours, ये बुनियादी तौर पे पुलिस स्टेशन में जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे कोई मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट हो तो वो इंश्योर करें विद इन 2 hours कि वो एजेंसी को ज़ारा को इंटीमेट करें थ्रू एनी अवेलेबल मीन्स regarding the said incident so that ZARA agency at the national level चूँकि is a coordinated body having its presence in all the provinces, having its presence at the divisional level, वो इस बात को इंश्योर करे कि थ्रू आउट द कंट्री ये अलार्म जो है ये रेज कर दिया गया है ताकि एजेंसीज क्विकली रिस्पॉन्ड करें और रिकवरी ऑफ द मिसिंग और अबडक्टेड चाइल्ड को इंश्योर करें। फर्दर हम डिस्कस करें इसी पॉइंट को
The missing or abducted child database shall be shared online database maintained by Zara office in accordance with the prescribed rules. The police officer shall ensure that the required information in schedule to this act is made part of the complaint. As a matter of fact, जब इंटीमेट किया जाएगा पुलिस ऑफिसर को रिगार्डिंग द इंसिडेंट, तो ये ड्यूटी है कंसर्न पुलिस ऑफिसर की कि वो इंश्योर करे कि विद इन 2 आवर्स वो उस इंफॉर्मेशन को ज़ारा एजेंसी तक पास ऑन करे थ्रू एनी पॉसिबल मीन, नंबर 1, एंड नंबर 2 इस बात को इंश्योर करे कि जो कंप्लेंट लॉन्च की जा रही है उसमें सेक्शन 7 का जो कंसर्न शेड्यूल है, शेड्यूल ए, जिसमें मिसिंग चाइल्ड की वाइटल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किए जाएं। तो उन वाइटल इंफॉर्मेशन में से जो की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके लिए आई हैव जस्ट जॉटेड डाउन. लेट मी शेयर द शेड्यूल ए. बेसिकली basic information about the missing child: full name, date of birth, birthplace, nicknames if any, current and previous addresses, who else lived there, current and former employers, language spoken, clothes description, school attended and recent picture. ये 10 की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए जॉट डाउन किए हैं. एंड बुनियादी तौर पे जो इनेक्स्चर ए है, जो कंप्लेंट का पार्ट होना चाहिए या कंप्लेंट में विद इन ये फीचर्स, ये डिटेल्स मिसिंग चाइल्ड की आनी चाहिए, ये बुनियादी ड्यूटी है कंसर्न पुलिस ऑफिशियल की. फर्दर हम इसी पॉइंट को डिस्कस करें सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7 of Zainab Alert Response and Recovery Act 2020. तो सबसेक्शन 2 प्रोवाइड करता है द लोकल पुलिस एंड कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज shall on receipt of information under subsection 1 take immediate action and launch the investigation, search, rescue and recovery operations. Zara shall, wherever required, coordinate the efforts of the concerned police stations and any other federal and provincial agencies, authorities or departments. So बुनियादी तौर पे ये लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे मिसिंग चाइल्ड का इंसिडेंट रिपोर्ट हो तो वो ये इंश्योर करे कि वो इन नो टाइम इमीडिएटली विदाउट वेस्टेज ऑफ सिंगल मिनट इंश्योर करे कि अलर्ट रेज हो, नंबर 1, नंबर 2 रिस्पॉन्ड करें उस सिचुएशन को और इन्वेस्टिगेशन, सर्च और द रेस्क्यू ऑफ द मिसिंग चाइल्ड को इंश्योर करें. ये बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Subsection 3 of Section 7 provide, in case Zara office receives a direct complaint of a missing or abducted child, it shall coordinate immediately with the local police station and other Zara offices to ensure all actions relating to Zara are initiated. As I said earlier, जो एजेंसी है ज़ारा एक्ट 2020 के तहत, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर 1099 पे डायरेक्ट कोई कंप्लेंट लॉन्च की जाती है तो वो विद इन नो टाइम थ्रू आउट द कंट्री अलर्ट रेज करे, इंश्योर करे कि कॉम्पिटेंट एजेंसीज जो हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन in order to ensure the recovery of the minor child. This includes registering a complaint at the concerned police station, any other federal or provincial agency, authority or department that Zara may consider necessary in this regard on behalf of the complaint. So subsection 3 of section 7 के तहत ये बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी की है कि वो इंश्योर करे कि अगर उनको डायरेक्ट कोई मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट हुआ है तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को इंटीमेट करें और इंश्योर करें कि जो कानून की कंप्लायंस है उस पर अमल दरामद हो रहा है. Section 8 is of key importance and we will discuss this section in our next session. Thank you very much.